morning students, how are you? I hope you all are fine and doing your study well. Students, today we will start chapter 2nd. So open your book, page number 15, chapter 2nd. Okay. In this chapter, we will cover operating system, types of operating system, exploring Windows 7, desktop, etc. topics. So, name of our second chapter is GUI, operating system and introduction. GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंसेप्ट है उसका एक इंट्रोडक्शन आपके चैप्टर में दिया गया है. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे आई लर्न अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज लाइक अ हेड मैनेजिंग ऑल द टास्क. लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल. आप मैनेजर क्या होता है? जो हर जगह आपकी कंपनीज में, आपके घर पे, हर जगह कोई ना कोई हर काम को मैनेज करता है. लाइक योर फादर आपके पूरे घर को मैनेज करते हैं. तो जो पूरे हर टास्क को, हर घर के हर टास्क को या किसी कंपनी में हर टास्क को मैनेज करता है, वो होता है मैनेजर. ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कंप्यूटर के लिए? एक मैनेजर, क्योंकि वो क्या करता है? सारे टास्क को मैनेज करता है. It's like a manager of computer. Why manager? Because manage all the tasks. Okay? A computer is made up of different parts. It does many things at a time. It therefore requires a manager. The manager of a computer is its operating system. कंप्यूटर क्या है? उसके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, बहुत सारे पार्ट्स जो है कंप्यूटर से अटैच होते हैं, जिनका डिफरेंट वर्क होता है. ओके, सो ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, दिस इज डिफरेंट वर्क एट वन टाइम. सो डिफरेंट कंप्यूटर कैन do many different work at one time. So to manage all the tasks of computer needs a manager. And who the manager of computer? Operating system. Clear? So operating system, the main work of operating system to manage all the tasks of computer. All the tasks means input devices task, output devices task, how you can enter the input, how you get the output. So all the tasks managed by operating system. Next page number 16. Operating system. The operating system is the most important software that runs on a computer. It is program that help in the communication between the computer and the user. ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में रन करता है. बिकॉज विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम योर कंप्यूटर कांट वर्क. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टू फॉर द कंप्यूटर. इट हेल्प इन द कम्युनिकेशन. मीन्स जो यूजर कौन है? हम. और यूजर और कंप्यूटर में जो कम्युनिकेशन होती है, हाउ यू कैन डू वर्क ऑन कंप्यूटर. आप कंप्यूटर को कैसे कमांड कर सकते हो, उसे कैसे कोई टास्क करने के लिए दे सकते हो. तो उस कम्युनिकेशन को कौन परफॉर्म करता है, उसमें कौन हेल्प करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज द बैकबोन ऑफ ए कंप्यूटर. ये कंप्यूटर के लिए क्या है? एक बैकबोन है. मीन्स कंप्यूटर इसके साथ ही वर्क करेगा. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कांट वर्क. It is the first program loaded into the memory of a computer when it is switched on. Without the operating system, the computer will not work. जब भी हमारा कंप्यूटर स्विच ऑन होता है तो कंप्यूटर में जो सबसे पहला वर्क होता है, कुछ लोड होता है, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. There are two types of operating system. Character user interface and graphical user interface, CUI and GUI. There are two types of operating system. First is character user interface and second is graphical user interface. There are two types of operating system. First is CUI, character user interface, and
second is GUI, graphical user interface. Clear? First is CUI. In a CUI operating system, you have to type commands for the computer. You need to remember the commands needed to make the computer do a task. DOS for Windows and the bash shell for Linux and iOS are example of CUI operating system. Students, how you can work on computer? आज आप जब भी लैब में जाते हो आप कैसे कंप्यूटर पर वर्क करते हो? आपको पेंट ओपन करना होता है, आप माउस यूज करते हो, उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन ऑन कर लेते हो. बट इन CUI आपको टाइप करना पड़ेगा. लाइक यू वांट टू ओपन द कमांड, तो जो उसकी कमांड है आपको वो टाइप करनी पड़ेगी. आप क्लिक करके एप्लीकेशन ओपन नहीं कर सकते हो. तो वो है हमारा CUI इंटरफेस, जिसमें हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसे हमें टाइप करना पड़ेगा. लाइक ऐसे आपको एक कमांड राइट करनी पड़ेगी, तभी कंप्यूटर आपकी एप्लीकेशन को ओपन करेगा. क्लियर? सो इन विंडोज कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन्हें हम करंटली यूज करते हैं? आपकी जो लैब में है वो कौन से है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो विंडोज के लिए एक एग्जांपल है आपका CUI का DOS. तो ये एक एग्जांपल है DOS फॉर इन विंडोज. And the other examples are Linux, iOS. These all are the example of CUI. Clear? Next is GUI, graphical user interface. In a GUI operating system, you use a mouse and keyboard to give commands. GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में आप माउस और कीबोर्ड का यूज करते हो कोई भी कमांड कंप्यूटर को देने के लिए. There are icons, buttons, windows and menus on the screen. बहुत सारे आइकन्स और मेन्यूज विंडोज स्क्रीन पर दिखाई देते हैं. All these replace the commands that you needed to type in a CUI. वो सब जो हम कमांड हमें CUI में टाइप करनी होती है उसे रिप्लेस कर देते हैं. You do not need to remember the commands. आपको CUI में कमांड्स रिमेंबर करने की नीड नहीं होती है. Various tasks can be done by just clicking a mouse. बहुत सारे टास्क आप सिर्फ माउस से क्लिक करके परफॉर्म कर सकते हो. Microsoft Windows and Mac OS are example of GUI operating system. जो Windows है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं और Mac OS, these are the example of GUI operating system. GUI फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इसका एक एग्जांपल क्या है? विंडोज एंड मैक OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम. These both are the example of GUI. स्टूडेंट GUI में हमें कमांड लर्न करने की नीड नहीं होती है. लाइक इन CUI में आपको कमांड टाइप करनी होती है, अभी मैंने आपको बताया था. तो कमांड आपको लर्न करनी पड़ेंगे. आप रॉन्ग कमांड से कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं कर सकते हो. बट इन GUI you don't need to learn any command because there are many icons on the Windows screen, many menus are there. Simply you can click on that to open any application on your computer. So यहाँ पे हमारे बहुत सारे आइकन होते हैं. जब भी आप कोई कंप्यूटर स्क्रीन ओपन करते हो, किए ना आपने, तो वहाँ पे छोटे छोटे आइकन होते हैं विंडोज स्क्रीन पर. पेंट, माय कंप्यूटर. तो आप माउस से इनको क्लिक करके ओपन कर सकते हो. जैसे ही हम MS पेंट ओपन करते हैं वहां पे भी हमें मेन्यूज मिलते हैं ना. फाइल, ओके, व्यू. तो ये फाइल में आपको क्या क्या मिलता है? सेव कर सकते हो आप, ओपन कर सकते हो, न्यू फाइल बना सकते हो. तो ये सब क्या है? आपको लर्न करने की नीड होती है नहीं. आपको ये मेन्यूज बने हुए मिलते हैं आपकी
आपकी विंडोज स्क्रीन पर मिलते हैं, आप सिंपली क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको कोई डॉक्स बनानी है, कोई डॉक्यूमेंट बनानी है या कोई लेटर टाइप करना है तो हम कीबोर्ड यूज करके उसे टाइप कर सकते हैं। तो सिंपली इन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम वी विल यूज कीबोर्ड एंड माउस टू गिव द कमांड टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को कोई भी कमांड देने के लिए कि वो क्या काम करे, उसके लिए मेनली यूज करते हैं माउस एंड कीबोर्ड। नेक्स्ट पेज नंबर 17। Microsoft Windows or Windows is the most popular GUI operating system available for modern personal computer. मैक OS और जो विंडोज है वो आज के टाइम पे सबसे पॉपुलर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन्हें हम मेनली यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटेड द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन द 1980s। जो सबसे पहले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया था उसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था 1980s में। Over the years, there have been many different versions of Windows like Windows 95, Windows 98, and Windows XP. For this lecture, it is enough. In next lecture, we will discuss next topics. Okay, students, thank you.